مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سبوں کا خالق مالک رازق ہے، جو حقیقی معبود ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سب جھوٹے اور باطل ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے کندھوں پر رب العالمین نے اسلام کے احکام و قوانین کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت و دیانت داری کے ساتھ تمام احکام و مسائل لوگوں تک پہنچائے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ آپ سب جانتے ہیں ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، عربی مہینے کے حساب سے یہ بالکل آخری مہینہ ہے رمضان سے پہلے کا، یعنی شعبان سے گزر رہے ہیں۔ ماہ رمضان بالکل قریب ہے، کچھ دنوں بعد ہی عظیم الشان مہینے کا ہمارے اوپر سایہ فغن ہونے والا ہے، جو گوناگو خصوصیات اور خصائل کی وجہ سے دوسرے مہینوں پر امتیازی شان رکھتا ہے۔ مومن بندے اس مہینے کا بے حد خوشی کے ساتھ انتظار کرتے رہتے ہیں، کیوں نہ ہو جب کہ رمضان المبارک لوگوں کے ایمان کو تقویت پہنچاتا ہے۔ کیوں نہ انتظار کریں کہ جب رمضان کے آتے ہی شرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، کیوں نہ انتظار کریں مومنین رمضان المبارک کا کہ جب یہ مہینہ قریب آتا ہے تو ہر آدمی اپنے آپ کو جنت کے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، تمام اعمال کے ثواب کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ لہذا یہ مہینہ جو آنے والا ہے دراصل جنت کا پروانہ پانا، جنت کے ٹکٹ پانے جیسا مہینہ ہے۔ آپ سب تجارت پیشہ انسان ہیں، آپ سب جانتے ہیں جب تجارت کرنے والے آدمی ہیں، تجارت کے بھی کچھ خاص ایام ہوتے ہیں، تمام دنوں میں یکساں کاروباری نہیں ہوتی ہے۔ کچھ دنوں کے اندر تجارت میں بہت زیادہ منافع ہوتا ہے، کچھ دنوں میں برابر چلتا رہتا ہے۔ آپ سب ان دنوں کا شدت کے ساتھ انتظار کرتے ہیں جو تجارت کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوں۔ جب وہ دن قریب ہوتے ہیں، آپ کے تمام جانتے ہیں اچھی طریقے سے، آپ ہر ناحیے سے تیاری کرتے ہیں، سامان وافر مقدار میں جمع رکھتے ہیں، پیسے کو پہلے سے سجو کر رکھتے ہیں کہ ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، کسی بھی
तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा जब आप सब तिजारत पेशा इंसान हैं तो इस महीने को उस नाहियत से देखें, ये महीना भी सवाब कमाने का बहुत बेहतरीन महीना होता है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार सवाब कमाने के वसाइल भी रखे हैं, ज़राए भी रखे हैं, और सवाब हद से ज़्यादा दिया जाता है। तो क्यों ना हम इस महीने का अच्छे अंदाज से इस्तकबाल करें, उसके लिए तैयारी करें। लिहाजा इस महीने के आने से पहले पहले चंद चीज़ों का करना ज़रूरी है। इतना बड़ा महीना है, इतनी शान वाला, इतने अज़मतों वाला महीना है, तो हम उस महीने का अच्छे अंदाज से, अहसन अंदाज से इस्तकबाल करें। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि महीना के आने से पहले पहले अपने नीयतों को खालिस कर लें। अपने नीयतों के अंदर जो खराबियाँ हैं, नीयतों के अंदर जिस तरह की कोई बदअमलियाँ पाई जाती हैं, उन तमाम को दरकिनार कर दें और इखलास के साथ हर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो महीना आने वाला है बहुत शान वाला महीना है। लिहाजा इस महीने के आने से पहले पहले हम अपने नियतों को खालिस कर लें। कोई भी इबादत हो, चाहे नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, हज करें, यहाँ तक कि जितनी किस्म इबादत की है सारी किस्मों में रब्बुल आलमीन ने इखलास का हुक्म दिया। अल्लाह फरमाता वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह का हुक्म है इबादत करो तो मुखलिस होकर करो, इखलास के साथ करो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास हुक्म दिया, कहा फ़अब्दिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी इबादत करें तो इखलास के साथ इबादत करें। लिहाजा इस महीना के आने से पहले पहले हम अपने नियतों को साफ करें, अपने नियतों के अंदर खुलूस पैदा करें, अपने नियतों के अंदर लिल्लाहियत को पैदा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए हर अमल करें। रिया व नुमू की तमाम चादरों को अपने आप से दूर फेंकें और इस महीना के इसी एतबार से इस्तकबाल करें। इस अजीम शान महीने के आने से पहले पहले हम अपने साबिका गुनाहों से माफ़ी तलाफ़ी कर लें, साबिका गुनाहों से तौबा कर लें। एक कहावत बहुत मशहूर है, मैं गुज़श्ता साल भी इसी तरीके का एक खुतबा दिया था इस्तकबाल रमज़ान के मौजू पर। उससे कुछ जुमले और कुछ बातें अलग हो सकती हैं, सारी की सारी बातें तो नहीं, कुछ अलग हो सकती हैं। बहरकैफ एक मशहूर मकूला है कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जाता है। हम साल के 11 महीने गुनाहों में डूबकर अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, गुनाहों के दलदल में डूबे हुए रहते हैं। जब ये महीना आने वाला है, जो महीना तमाम गुनाहों को उसके सफाई की तौफीक देता है, तो इस महीने के आने से पहले पहले हम अपने गुनाहों से तौबा करें। बहुत सारे आदमी होते हैं, महीना आ जाता है, रमज़ान जो ही करीब आया वो भी तैयारी करते हैं रोज़ा रखने की, और वो भी रोज़ा रखते हैं लेकिन गुनाहों से तौबा नहीं करते हैं। कबीरा गुनाह साल के 11 महीने में किए हुए रहते हैं। याद रखें, आपके नामाए अमाल में कबीरा गुनाह अगर है और आपने उनसे तौबा नहीं किया है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, कबीरा गुनाह से अगर आपने तौबा नहीं किया तो वो नेक अमाल आपके फ़ायदा आने वाला नहीं है। लिहाजा रमज़ान मुबारक के आने से पहले पहले आप तमाम तरह के गुनाहों से तौबा कर लें, और ज़रूरी है तौबा करना। कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि हम इतने गुनाह कर चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करेगा या नहीं करेगा, हमें उम्मीद नहीं है, और वो आदमी अल्लाह के सामने हाथ नहीं उठाता है। हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाता है, अल्लाह उसके हाथ को गिरने से पहले पहले उसकी दुआओं के कबूल कर लेता है, उसको इसकी माफ़ी तलाफ़ी को कबूल कर लेता है। शर्त यह है कि उन तमाम शुरूत को बरूकार लाया जाए जो तौबा के लिए ज़रूरी है। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है, अपनी रहमतों के ताल्लुक से फरमाता है, अल्लाह कितना बड़ा गफ़ार है, अल्लाह कितना बड़ा रहमान और रहीम है। अल्लाह फरमाता है, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में ऐलान कर दें, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों को कहें, मेरे उन बंदों को कहें जिन्होंने अपने जानों के ऊपर जुल्म किया है। और जुल्म क्या है जानों के ऊपर? जानों के ऊपर जुल्म यह है कि गुनाह कर लिया जाए, और बड़े बड़े गुनाह कर लिया जाए। अल्लाह फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, उन लोगों से कहें अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह के सामने आए तो सही, अल्लाह गुनाहों को माफ़ करता है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तो तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला है। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल, उसका इस्तकबाल हम इस नहज से करें कि पहले तो नियतों को खालिस करें, दूसरे नंबर पर यह कि तमाम गुनाहों से तौबा करें। अच्छा,
गुनाहों से तौबा के शुरूत हैं, गुनाहों से तौबा के शुरूत हैं। यूं आया और हाथ उठा लिया और गुनाहों से तौबा कर ली, वो तौबा नहीं है। अल्लाह के सामने आए, अल्लाह के सामने आने के बाद आपने पहले अपनी इज्जो इनकिसारी को अल्लाह के सामने रखा, अपनी बेबसी का आपने इकरार किया कि मैं बेबस हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, ए अल्लाह तू ही सब कुछ करने वाला है। पहले अपने आप को अल्लाह के सामने आजिज़ बनाएं। ये सारा कुछ करने के बाद तर्के गुनाह का इरादा करें कि अब हम गुनाह नहीं करेंगे, गुनाह छोड़ दें। पहले दूसरा काम है गुनाह छोड़ दें। उसके बाद जब गुनाह छोड़ दें तो फिर उस गुनाह पर शर्मत व नदामत का इजहार करें, आंखों से आंसू बहाएं कि हमने कैसा गुनाह कर लिया है। ये करने के बाद चौथे नंबर पे करें कि अज़्म मुसम्मम करें कि आइंदा अब ये गुनाह जो हो चुका था नहीं करेंगे। बशरियत के तकाजे के मुताबिक गुनाह तो होता रहेगा, हम निस्यान के पुतले हैं, हमसे अगर गुनाह का सुदूर नहीं तो फिर हमारा शुमार फरिश्तों में ना हो जाता, हमसे गुनाह हो जाएगा। लेकिन अज़्म करें, इरादा करें कि अब गुनाह नहीं करेंगे। जब इस किस्म के वादे अगर कोई करता है, फिर आखिर में एक और तौबा की शुरूत यह है कि हुकूक की अदायगी किया जाए। बाज़ गुनाह का ताल्लुक इंसानों से होता है, बाज़ गुनाह का ताल्लुक अल्लाह से होता है, मतलब हुकूकुल्लाह से होता है और हुकूकुल इबाद से होता है। लिहाजा हुकूकुल इबाद के मसले को अच्छे अंदाज से सुलझाएं। हुकूकुल्लाह का मसला जैसे अल्लाह के सामने आप आए, अल्लाह के सामने अपने आप को बेबस किया, वो सादिर हो गया, वो नाफिज हो चुका है, क्योंकि आपने मान लिया है अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, अल्लाह बहुत बड़ा है। ये मान लिया, आपने इकरार कर लिया, अल्लाह के हुकूक का आपने हक अदा कर दिया उस मौके पर। अब इंसानों के हुकूक को अदा करना है। आपने किसी को ठेस पहुंचाया है, आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई है, आपने किसी को गाली गलौज दिया है जिससे वो बहुत ज़्यादा रंजीदा है। लिहाजा ये काम करने की कोशिश करें। ये है तौबा के शुरूत, ये काम करना है। जब ये महीना आ जाए, इस महीने के इस्तिकबाल से पहले पहले एक फिर इरादा ये भी करें कि हम सिर्फ रमज़ान तक नमाजी नहीं रहेंगे। बाज़ हरात होता क्या है कि रमज़ान आते हैं और बरसात की मेढकों की तरह सजदे पे सजदे करते रहते हैं। बरसात के और इन गर्मियों के मौसम में शाम को जो तितलियाँ उड़ती हैं उस जैसे हो जाते हैं। वैसा नहीं होना है। रमज़ान आया, ठीक है, चूँकि रमज़ान अल्लाह ने इसीलिए रोज़े को फ़र्ज़ किया है ताकि ईमान को तक़वियत दिया जाए। ईमान के अंदर जो सुस्ती और काहिली आ चुकी होती है, इबादतों में जो आदमी सुस्त पड़ चुका होता है, नए सिरे से उसे चाशनी तक़वियत पहुंचाई जाती है, उसके अमाल में बूस्ट पैदा किया जाता है, उसे बूस्ट किया जाता है, एक तरीके का एनर्जी दिया जाता है। ये अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन इस महीने के आने के बाद एक इरादा ये करें कि हम जब तक जिंदा रहेंगे नमाज पढ़ते रहेंगे, रोज़े रखते रहेंगे। ये सारी चीज़ रमज़ान के आने से पहले पहले इरादा कर ले। फिर जब ये महीना करीब आ जाता हो, एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी हदीस फरमाई है। आदमी अपने आप को जिंदा रहते हुए मुनाफिकों के कैटेगरी से, अपने आप को जहन्नम से दूर करना चाहता हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये सिफत अपने अंदर पैदा कर ले, वो आदमी जहन्नम से भी करीब दूर हो जाएगा और निफाक से आदमी अपने आप को दूर कर लेगा। वो अजीम खुशखबरी क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब आदमी कोई 40 दिन तक तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता है तो अल्लाह की जानिब से दो चीज़ों से बरात लिख दी जाती है, बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक। आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा और मुनाफिक नहीं बनेगा अगर 40 दिन तक कोई तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता है। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक में इससे बेहतरीन और मौका कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि हर ऐरा गैरा शराबी भी जानता है कि जब रोज़ा रखेंगे तो नमाज पढ़ना ज़रूरी है। अगर रोज़ा रखकर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो वो रोज़ा किस काम का है? जब नमाज पढ़ेंगे और नमाज पढ़ने के साथ साथ अगर ये फजीलत का हम मिज़ाक बनने के चांस मिला है तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं और 40 दिन तक तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ें। हमारे असलाफ रहमहुमुल्लाह 40 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, 30 साल तक तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ते थे। हमारे असलाफ में से सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से सियर आलामुन नुबला के अंदर आता है, वो खुद अपने जानिब से ताल्लुक से कहते हैं मा अज़्ज़नल मुअज़्ज़िनु मुंदु 30 सनतन इल्ला व अना फिल मस्जिद। कहते हैं 30 साल ऐसी गुजरी है मेरी ज़िंदगी के अंदर, कहते 30 साल ऐसी गुजरी है मेरी ज़िंदगी के अंदर कि जब भी मुअज़्ज़िन ने आज़ान दिया है मैं मस्जिद के अंदर होता था।
एक दिन नहीं, 30 साल तक जब भी मुअज्जिन ने आज़ान दी है मैं मस्जिद में होता था। ये हमारे असलाफ थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए उनका नाम इस तरीके से बाकी रख दिया है। सदियाँ गुजर चुकी हैं, जब भी नाम लेते हैं रहमहुल्लाह आगे जोड़ना पड़ता है, दुआए खैर देना पड़ता है, क्योंकि अंजाम ऐसे, किरदार ऐसा निभा कर गए हैं, इस तरीके के अमल लोगों के सामने नमूना अपने आप को बना कर गए हैं। लिहाजा ज़रूरत है कि हम 40 दिन तक तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने के जो फजीलत है वो अपने आप को यहाँ क्या कहते हैं उसका बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके से माह रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले पहले रमज़ानुल मुबारक के मसाइल को सीख लिया जाए। इस्तिक़बाल का तरीका है, हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देने जाने के बाद वहाँ नहीं सोचते हैं क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, उससे पहले हम तैयारी शुरू कर देते हैं। बाज़ औरात तो बहुत ज़्यादा और बाज़ औरात आखिर के चंद दिनों में सोता कम है और तैयारी इतनी मेहनत से करता है कि हम किसी भी तरीके से इस चांस का फ़ायदा उठाएं, अपने आप को टॉपर में करने की कोशिश करें ताकि मेरा नाम रोशन हो। लिहाजा इस माह के आने से पहले पहले हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं हू बहू रमज़ानुल मुबारक के दिनों के इबादत से फ़ायदा उठाने के लिए इबादत के तौर तरीके को सीखा जाए, इबादत के मसाले को सीखा जाए। रमज़ान आता है, एक रोज़ा रख लिया, 2 रोज़ा रख लिया, 3 रोज़ा रख लिया, फिर मौलवी साहब से मिलते हैं, अच्छा इस वक्त ये कर लेते तो ठीक रहता कि नहीं, वो रोज़े की हालत में हो गया, कहीं हमारे रोज़ा में कमी तो नहीं आ गई। रमज़ान के आने से पहले पहले रोज़ों के मसाइल सीखा जाए, तरावी के मसाइल को सीखा जाए, एतिकाफ के मसाइल को सीखा जाए, ईद उल फित्र के मसाइल को सीखा जाए, कब सहरी करना है, कितने वक्त में इफ्तार करना है, कितना खाना किसको खिलाना है, क्या कुछ करना है, ये तमाम के तमाम मसाइल को रमज़ान के आने से पहले पहले सीख लें। आप कहेंगे इतना कम टाइम है, सीखेंगे कैसे? दुनिया बहुत तेज़ है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप एक आलिम के नाम के साथ बल्कि कई दुरूस चलते हैं। अब मोबाइल का फ़ायदा उठाइए, रमज़ान के मसाइल को बेहतरीन सलफ़ी उलमा की ज़ुबानी सुनिए और रमज़ान के मसाइल को सीखिए। एक दिन 1 घंटा निकालिए, दूसरे दिन 1 घंटा निकालिए, 3 घंटे में रमज़ान के तमाम मसाइल आपके जहन में आ सकता है। लिहाजा ये कोशिश करिए। इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले पहले हम अपनी ज़िंदगी का निज़ाम अच्छे अंदाज से, अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा का शेड्यूल बनाएं, उनको तरतीब दें कि हमें क्या करना है, कब क्या करना है। कुछ आदमी होते हैं रमज़ान आता है पहले ही दिन 1 पारा पढ़ लिया, दूसरे दिन 1 पारा पढ़ लिया, तीसरे दिन 1 पारा पढ़ लिया, चौथे दिन वो आदमी कहता इतना तो पढ़ लिया हूँ, अब धीरे धीरे पढ़ेंगे। लिहाजा ये ज़रूरी नहीं है। इबादत और कुरान, चूँकि रमज़ान महीना ही कुरान का है, कुरान खूब पढ़ना चाहिए। रमज़ान में कोशिश करें कि आप कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, समझ कर कुरान पढ़ें। कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे सामने भेजा हुआ है समझने के लिए, सिर्फ ज़ुबानी सरसरी नाजरा के लिए नहीं है। लिहाजा इन दिनों में अपने आप के फारिग औकात को यूँ ज़ाय ना करें, मस्जिद आएँ या घर में बैठें और कुरान को तफसीर और तर्जुमा के साथ पढ़ें। ये तमाम काम करने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया रमज़ान के आने से पहले अदा करें कि अल्लाह तूने रमज़ान के आने तक मुझे ज़िंदा रखा। हमारे असलाफ रहमहुमुल्लाह रमज़ानुल मुबारक का बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार करते थे और जब रमज़ान आ जाता था अल्लाह का शुक्रिया अदा करते थे। लिहाजा हम भी रमज़ान का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ने हमें रमज़ान तक ज़िंदा रखा। क्यों? क्योंकि ये इतनी कदर व मंजिलत वाला महीना है कि जो आदमी रमज़ान को पा लेता है, जो आदमी रमज़ान के रोज़े को रख लेता है, वो आदमी अपने आप को जन्नत में दाखिल करा लेता है, इखलास के साथ रखने वाला। लिहाजा रमज़ान के आने से पहले पहले रमज़ान के कदर व मंजिलत को जानते हुए वो मिल जाना, बाई से सवाब समझते हुए, बाई से नेमत समझते हुए अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह तूने हमें रमज़ान तक ज़िंदा रखा और रमज़ान से फ़ायदा उठाने का मौका फ़राहम किया। ये क्यों कर करें? क्योंकि नेमत का शुक्रगुजारी अगर करेंगे तो अल्लाह मज़ीद नेकियों का चांस देगा। अल्लाह फरमाता है जो ने, और ये रमज़ान का पाना नेमत है, जो अल्लाह फरमाता जो नेमतों को शुक्रगुजारी करता है हम उसे मज़ीद नेमतों से नवाजते हैं, और जो नाशुक्री करता है हम उसे नेमतों से दूर कर देते हैं। आप नाशुक्री करेंगे, हो ना हो रमज़ान का महीना पाने के बावजूद भी आप उन तमाम अच्छे अच्छे लम्हों से, अच्छी अच्छी घड़ियों से फ़ायदा ना उठा पाएँ जो आपके नसीब में आया है। और ये कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम के सामने एक रमज़ान के रोज़े रखने की फजीलत में कितना जन्नत के अंदर दर्जा बुलंद हो जाता है, आपने एक मौके पर फरमाया था। इंशाअल्लाह वो हदीस कभी रमज़ान में आएगी। खैर, ये तो रहा सरसरी तौर पर इस्तिक़बाल से पहले की बातें। सवाल ये उठता है, खुतबा मसनूना के बाद पढ़ी गई आयत, अल्लाह फरमाता है लोगों हमने तुम लोगों के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया है। मकसद क्या? अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, इसलिए रोज़ा फ़र्ज़ किया है। रमज़ान के आने से पहले पहले तहिया करें, ए अल्लाह अब तक जैसी भी ज़िंदगी गुजर गई है अब मैं तकवा वाली ज़िंदगी गुजारूंगा, अब वैसी ज़िंदगी गुजारूंगा जिसमें तेरी रज़ा छुपी हुई है, अब ऐसी ज़िंदगी गुजारूंगा जिससे तू खुश होता है। नाराज़गी वाली ज़िंदगी से अपने आप को दूर करने की कोशिश करें। रमज़ान के आने से पहले पहले तकवा कहा किसे जाता है? तकवा कहा जाता है अवामिर पर बिला चूचरा अमल किया जाए और नवाही से बचा जाए, इसे तकवा कहते हैं। और तकवा की और भी तशरीह है, वो कभी मौके से आएगी। रमज़ान मुबारक के रोज़े की फ़र्ज़ियत के मकसद को जाने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया जाता है ताकि लोग मुत्तक़ी बने, अपने नफ्सों के ऊपर कंट्रोल करना सीखें। ये रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ नहीं हुआ है कि रोज़ा रख लें, भूख प्यास सह जाएं, बल्कि रोज़ा इसलिए है ताकि शहवत पर कंट्रोल हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर नौजवानों की जमात से कहा था, ऐ नौजवानों, ये शहवत पर कंट्रोल की दलील है, कहा ऐ नौजवानों शादी कर लो। कहा इसलिए शादी करो क्योंकि शादी शहवतों पर कंट्रोल कराता है, निगाहों को नीची करा देता है, शर्मगाहों की हिफाजत कराता है। और सुनो, वमन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम, जो शादी की ताकत नहीं पाता है, शादी नहीं कर सकता है, तो वो रोज़ा रखे, इसलिए कि रोज़ा ढाल है, एक तरीके से शहवत पर कंट्रोल करता है। इसी तरीके से रमज़ान मुबारक के रोज़े के फ़र्दियत के मकासद में से दूसरा ये है कि ये अखलाकी तरबियत करना मकसूद है। अल्लाह रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की फ़र्दियत के मकसद को वादे करते हुए फरमाया रोज़ा इसलिए नहीं है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रोज़े की फ़र्दियत क्यों हुई है? ताकि लोगों को अखलाकी एतबार से, अच्छे एतबार से तरबियत किया जाए। और वो तरबियत क्या है? अच्छा, हुस्न अखलाक क्या है? हुस्न अखलाक ये है कि जिसके ज़ुबान से लोग खुश रहते हों, जिसके ज़ुबान से महफूज हों, जिसके चालो किरदार से लोग मुतमईन रहते हों, जब चलता हो तो लोग मिसाल देते हों, यही तो हुस्न अखलाक की निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं चला करते थे, जाते थे, तो हर जाने वाला कहता था हम उनके खिलाफ गुमान रखते हैं अलग अलग, लेकिन वो बहुत दिल के साफ हैं। और ये कब होता है? जब आदमी अपनी जुबान पर कंट्रोल रखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु। रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ नहीं किया गया है कि आदमी भूखो प्यास को सहे, इसलिए फ़र्ज़ किया गया है रोज़ा ताकि आदमी तरबियत याफ्ता अपने आप को बना ले। आदमी के अंदर जो खराबियां आ चुकी होती हैं ज़ुबान के ताल्लुक से, झूठ बोलता है, गाली देता है, किसी को तकलीफ पहुंचाता है, इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना शुरू कर दे और इसी तरीके से तमाम मुनकरात से अपने आप को दूर रखे, इसलिए रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन लम यदा कौल ज़ूर, जो झूठ बोलना नहीं छोड़ता है, वल अमल भी, उस पर अमल करना नहीं छोड़ता है, अल्लाह को ऐसे रोज़ेदारों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रोज़ा इसलिए भी फ़र्ज़ किया जाता है कि हमारी तरबियत हो। इसी तरीके से रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया है ताकि आदमी सब्र का आदी हो। और सब्र का आदमी कैसे है? मुस्नद अहमद की हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वस्सौमु निस्फ़ु सब्री व तुहूरु निस्फ़ुल ईमान। सौम ये सब्र के 100 हिस्सों में से 50% आधा हिस्सा ये सब्र की दावत देता है। सौम किस तरीके से आदमी भूखो प्यास को सहता है, आदमी गुनाहों के करीब होकर भी गुनाह नहीं करता है और सब्र करता है। रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया है। रोज़ा किस लिए फ़र्ज़ किया गया है? आखिरी बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमा ले और रमज़ान के आने से पहले पहले नेकी कमाने के आपके पास अल्लाह ने जो रास्ते और जो वसाइल दिए हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। मसलन अगर आप अमीर नहीं हैं तो ज़िक्र व अस्कार में अपने आप को डुबाए रखें, कसरत से तिलावत करें। और अगर आप अमीर भी हैं तो मज़ीद उस अमीरियत का फ़ायदा उठाते हुए सदक़ात व खैरात में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि आम दिनों में जो सवाब मिलता है उससे कई गुना बढ़ाकर इन दिनों में सवाब दिया जाता है। लिहाजा इब्तिदाए रमज़ान से, बल्कि उससे
उससे पहले पहले इस्तकबाल रमज़ान का तरीका भी यही है। उससे रमज़ान के घुसने से पहले पहले, रमज़ान के आने से पहले पहले बस्ती में जो गरीब गुरबा हैं, आस पास में मुस्लिम जो गरीब गुरबा हैं, जो रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन गुर्बत की वजह से वो काम करने जाते हैं, रोज़ा नहीं रख पाते हैं, इस्तकबाल का तरीका ये है कि हम अपने उन मुस्लिम भाइयों का अपने साथ इबादत में शरीक करें और उनके घरों तक जाएं, उनके घरों में राशन किट डालें, उनके घरों में राशन पहुंचाएं, रोज़े अफ्तार के तमाम वो चीज़ें पहुंचाएं और उनके बच्चों के ईद की तैयारी के लिए आप कोशिश करें और कह दें कि आप रोज़ा रखें इत्मीनान और सुकून के साथ। मुझे अल्लाह ने इतना दिया है तौफीक कि मैं आपको अपने साथ रोज़ा रखने वालों में शामिल करा सकता हूँ। ये करने की कोशिश करें। रमज़ान के आने से पहले पहले आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि शॉपिंग रमज़ान के आने से पहले पहले कर लें। हमारे यहाँ शॉपिंग कब होती है? जब आखिरी अशरा दाखिल हो जाता है तब चले बेटे के लिए जीन्स लेने, बेटे के लिए टी शर्ट लेने, बेटे के लिए बेहतरीन बेहतरीन शेरवानी लेने और कोटी वगैरह लेने कब जा रहे हैं? जबकि आखिरी अशरा दाखिल हो चुका है, जो 1000 रातों से बेहतर रात एक रात होती है, तब हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। इस्तकबाल रमज़ान का बेहतरीन तरीका ये है कि अभी चांस है आपके पास, रमज़ान के आने से पहले पहले तमाम तरह के जो ख़रीद व फ़रोख्त वाले काम है वो सब करने। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अहसन अंदाज में रमज़ान का